السلام علیکم، ٹیلن نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں رمشا شبیر اور میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا فوج کو ایران پر حملے کی تیاری کا حکم۔ وزیر دفاع بنی گینٹرز نے کہا کہ ایران پر فوجی دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی برادری جان گئی ہے کہ ایران ان کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے موجودہ عالمی نظام کو استحصالی اور مفادات پر مبنی قرار دے دیا۔ جمہوریت پر امریکی ورچوئل سمٹ میں پاکستان کی عدم شرکت درست فیصلہ تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کسی کی پارٹی نہ بننے کا بہترین موقف اختیار کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی گفتگو، کہا موجودہ استحصالی عالمی نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے جوہری ڈیٹرنس حاصل کیا۔ موجودہ استحصالی عالمی نظام میں ہندوستان جیسی بڑی معیشتوں کو عالمی طاقتوں کی جانب سے نوازا گیا۔ ایسے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا گوادر کے محنت کش ماہی گیروں کے مطالبات کا نوٹس۔ ٹرالر سے غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اعلان۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا، غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ معاملے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات کی جائے گی۔ باغوں کے حسین شہر لاہور میں سجا رنگا رنگ بولان ایوارڈ میلہ، جس میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے 24 ستاروں کو چیئرمین ٹیلن نیوز چوہدری سلیم بریار نے ایوارڈ سے نوازا۔ نامور فنکاروں کی زبردست پرفارمنس نے میلے کو 4 چاند لگا دیے۔ قومی اسمبلی کا کل طلب کیے جانے والا اجلاس ملتوی۔ اجلاس OIC سمٹ کے بعد بلایا جائے گا۔ مشیر پارلیمانی امور اور حکومتی چیف ویپ کی تصدیق۔ اجلاس میں IMF معاہدے کے تحت منی بجٹ پیش کیا جانا تھا۔ اپوزیشن نے اجلاس پر سخت تنقید اور منی بجٹ کی منظوری روکنے کا اعلان کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کا پرویز خٹک سمیت تمام صوبائی و وفاقی وزراء کو خیبر پختونخوا بدر کرنے کا مطالبہ۔ پرویز خٹک نوشہرہ میں اپنے بیٹے کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ لیگی رہنما اختیار ولی کا الزام، تمام صوبائی وزراء اپنے بھائیوں کی کیمپین میں کھلم کھلا مصروف ہیں۔ الیکشن کمیشن وزیر دفاع کے خلاف نوٹس لے۔ بنوں میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، 2 دہشت گرد گرفتار۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کارروائی پر دہشت گردوں کی فائرنگ۔ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 2 دہشت گرد پکڑے گئے۔ 2 عدد SMG، 1 ہینڈ گرنیڈ، 3 عدد میگزین اور کارتوس سمیت دیگر سامان برآمد۔ دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، بم دھماکوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں مطلوب تھے۔ پنجاب میں ایئر ریسکیو سروس پروجیکٹ کو سالانہ ترقیاتی پروگرام 2021-22 میں شامل۔ کابینہ کمیٹی نے منصوبے کو ADP میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ ایئر ریسکیو سروس کے لیے 1 ارب 16 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے، ایئر ایمبولینس کے منصوبے کا خواب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ ایئر ایمبولینس سروس سے مریضوں کو ریسکیو کی تیز ترین سہولت میسر آئے گی۔ نواب شاہ کے قریب نہر میں پیٹرول سے بھرا ٹینکر گر گیا۔ حادثے میں ڈرائیور جاں بحق۔ آئل ٹینکر کراچی سے لاہور جا رہا تھا۔ ڈرائیور کو نیند آ جانے پر ٹینکر بے قابو ہو کر نہر میں جا گرا۔ ڈرائیور کی لاش قاضی احمد اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ہیوی مشینری کے ذریعے آئل ٹینکر کو نہر سے نکال دیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کے ضلع ٹانک میں دوسرے روز بھی پولیو ٹیم پر فائرنگ۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس کانسٹیبل شہید۔ علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ گزشتہ روز بھی پولیس حوالدار شہید اور FC اہلکار زخمی ہو گیا تھا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں الصبح زلزلے کے جھٹکے۔ سوات، لوئر دیر، بنیر، شانگلہ، بھشام اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 3.8، گہرائی 120 کلومیٹر تھی۔ مرکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔ حیدرآباد اور نواحی علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے، شدت 3.3 ریکارڈ کی گئی۔ مرکز حیدرآباد سے 70 کلومیٹر مغرب میں تھا۔
गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल एहसान इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। एहतसाब से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद को एनआरओ दे रहे हैं। नौजवान रोजगार, मजदूर जीने का हक और किसान खाद मांग रहा है। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन के पीछे पड़े हुए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुक्मरानों ने माईशत की ईंट से ईंट बजा दी है। कबल अस वक्त इंतखाबी जलसे शुरू कर दिए गए हैं। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार इस्तीफा दें और घर जाएं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को नोटिस जारी। स्पीकर कौमी असम्बली को 13 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पर जुर्माना आयद किया था। लाहौर एक बार फिर फजाई आलूदगी की लपेट में। फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा फजाई आलूदगी कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में रिकॉर्ड की गई। कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में 542 AQI रिकॉर्ड। डेविस रोड पर 473 और मॉडल टाउन में AQI 452 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग के इलाके सैयद मुरातिब अली रोड पर AQI 446 रिकॉर्ड किया गया। कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ठंडी हवाएं चलने से शहर कायद में खुनकी में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्तूर में -7 और कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 8, पेशावर में 1, मुजफ्फराबाद में 3 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा। अमेरिका की 6 रियासतों में 30 से ज्यादा तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। बगोलों के 82 अफराद जान बहक। रियासत केंचुकी में 70 अफराद जान से गए। रियासती हुक्काम ने 100 से ज्यादा हलाकतों का खदशा जाहिर किया। मे फील्ड में बगोलों से तबाह फैक्ट्री के मलबे से 40 अफराद को निकाल लिया गया। हुक्काम ने रियासत में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। आर्कनसॉस में नर्सिंग होम की छत गिरने से 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को धमकी, अगर यूक्रेन पर हमला किया तो भारी कीमत उठाना पड़ेगी। यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को तबाहकुन मौशी नताइज का भी सामना करना पड़ेगा। जो बाइडन का वाज़ेह ऐलान। रूसी सदर को कातिल करार देते हुए कहा, व्लादिमीर पुतिन को अनकरीब कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट एक मर्तबा फिर हैक हो गया। मामला ट्विटर इंतजामिया के इल्म में लाया गया। अकाउंट कुछ देर बाद बहाल। वज़ीर-ए-आज़म का ज़ाती ट्विटर फौरी तौर पर महफूज कर लिया गया। हैकिंग के दौरान इस अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं किया गया, ना ही अब तक किसी और मुतासिर अकाउंट की कोई तफसील मिली। सितंबर 2020 में भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ज़ाती ट्विटर हैक हुआ था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला ना रुक सका। भारतीय फौज ने एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक कश्मीरी नौजवान को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। काबिज इंतजामिया ने जिला पुलवामा के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। इलाके में जालिम फौज का सर्च ऑपरेशन जारी। काबिज फौज ने 9 दिसंबर को भी चकचौलान में महासरे और तलाशी के दौरान 3 नौजवानों को शहीद किया था। कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। इंतहाई निगहदाश्त में जेरे इलाज मरीजों की तादाद कम होने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 288 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 0.62% रही। मजीद 7 अफराद वायरस से जाँ बहक हुए। सर्दी में इजाफे के साथ पंजाब में डेंगू का जोर टूटने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 20 नए केसेस रिपोर्ट। 11 का ताल्लुक लाहौर से है। महकमा सेहत के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 291 मरीज जेरे इलाज, जबकि लाहौर के अस्पतालों में 223 मरीज जेरे इलाज हैं। तिबी माहिरीन का कहना है सर्दी की वजह से डेंगू मच्छर की अफजाइश कम हो रही है। और
लाहौर दौरा पाकिस्तान पर मौजूद वेस्ट इंडीज टीम के 3 खिलाड़ी कोरोना का शिकार। ब्रूस्टन चीज, कॉयल मेयर्स और शेल्डन कोटल के कोविड टेस्ट मुस्बत आ गए। तीनों खिलाड़ी टी20 और वनडे मैचेस से बाहर। दोनों टीमों के दरमियान पहला टी20 कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे शहर लाहौर की। बागों के हसीन शहर लाहौर में सजा रंगारंग बोलान एवॉर्ड मेला, जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शोबिस सितारों को चेयरमैन टैलेंट न्यूज चौधरी सलीम बरियार ने एवॉर्ड से नवाजा। नामवर फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने मेले को 4 चांद लगा दिए। मजीद तफसीलात बता रही हैं ज़हरा तूसी अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर के अलहमरा आर्ट एंड कौंसिल में 41वें बोलान कल्चरल अवार्ड का मेला सजाया गया, जिसमें सीनियर सियासी रहनुमा चौधरी सलीम बरियार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पाक धरती का नाम रोशन करने वालों में अवार्ड तकसीम किए। चेयरमैन टैलेंट न्यूज चौधरी सलीम बरियार सकाफती सरगर्मियों के फरोग में बोलान अवार्ड के किरदार को सराहा। नामवर गुलकारों ने अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाया और शायकीन से दात ली। पहली बार इस अवार्ड में मुल्क की खिदमत करने वाले सहाफ़ियों को भी इनकी कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब का मकसद सकाफती सरगर्मियों को उजागर करना और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों को अवार्ड देकर इनको बताना था कि बाशऊर कौमें अपने अजीज वतन का नाम रोशन करने वाले सितारों से मोहब्बत करती हैं और इनकी खिदमात का एतराफ़ और एहतराम करती हैं। शोबिज़ में बोलान अवार्ड्स एक तारीखी अहमियत के हामिल हैं। ये बोलान अवार्ड्स की 41वीं सेरेमनी है। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ ज़हरा तूसी, टैलेंट न्यूज़, लाहौर। कराची के शहरियों के लिए जदीद ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरी मंसूबे के इफ्तिताह से पुरुमीद हैं कि उनको चिंची रिक्शों से निजात मिल जाएगी। ताहम बाज़ शहरियों ने खदशात का इजहार भी किया है। कराची के शहरी इस बारे में क्या राय रखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। शहर कायद में ऐसे बहुत से मंसूबे हैं जो मुकम्मल तो कर लिए गए, लेकिन आवाम के लिए ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हुए। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन शहरियों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ। इससे पहले बहुत सारे मंसूबे आए, सारे जीरो हो गए। 75 साल में लुटेरे जरूर मिले, लीडर एक भी नहीं मिला। तो लिहाजा जो इन्होंने हमें दिखाने, हमसे खाते हैं, कराची से खाते हैं और कराची वाले ही को धोखा दे देते हैं। ये इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं हमारे साथ कि आज कराची कचरा कुंडी बन चुका है। हर गली कचरा बना हुआ है। और जब ये जहाँ लीडर हमारे जहाँ रहते हैं, उन्होंने अपने लिए सारे जो सफाई करने वाले अपने घर में लगा दिया उन्होंने। शहरियों का मजीद कहना था कि जो भी हो, लेकिन मंसूबा हमारी बेहतरी का है। कराची के शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मंसूबे का ख्याल रखें। फ़ायदा होगा आवाम को, अगर आवाम फ़ायदा लेना चाहे। और दूसरी बात यह है कि इसकी मेंटेनेंस जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं कि ये आवाम को फ़ायदा दे और आवाम फ़ायदा ले, तो सबसे पहले इसकी मेंटेनेंस और इसकी देखभाल और इसका जो स्टाफ है उसे बरकरार रख के इसको लेके चलना होगा। वरना ये मंसूबे सारे जो हैं बस इसी तरह धरे के धरे रह जाएंगे। लाहौर में जो इन्होंने ये स्कीम चलाई, आप जाके उनका हाल देखें। जो लिफ्टें बनाई हैं वो बंद हो चुकी हैं। माजूर भी जो हैं वो दूसरे जीनों से चढ़ रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आवाम अगर खुद चाहे इससे फ़ायदा लेना तो ले सकती है। इससे मतलब आवाम को इंतहाई फ़ायदा पहुँचेगा, जो मतलब गरीब आवाम है बेचारे, और कराची के अंदर तो ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। शहरी कहते हैं कि अगर इस मंसूबे की मेंटेनेंस नहीं रखी गई तो ये मंसूबा भी बाकी मंसूबों की तरह नाकारा साबित होगा। मेंटेनेंस तो है। अभी पोजीशन देख लें आप क्या हो रहा है। अभी चली नहीं है, अभी पोजीशन देख लें आप क्या हो रहा है। ग्रीन लाइन मंसूबे में हायल मसाइल और मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन शहरियों के लिए ये मंसूबा टूटी फूटी खटारा बसों के सताए शहरियों के लिए जदीद सफरी सहूलियात का बाइस बनेगा। कैमरामैन शराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची।
कराची से रिपोर्ट आपने जानी। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।